Assalamualaikum students. Today we are going to study social studies of class 5. So let's start. So here it is contents list on unit number 1. It is the universe on page number 2. Unit number 1, the universe. The universe is very vast. It consists of space, energy and matter. In this open space there are galaxies, solar systems and other space bodies orbiting around each other. Such space bodies in solar system are stars, planets, asteroids, moons, meteors and comets. अब हमारा जो यूनिवर्स है वो बहुत बड़ा है। इसमें हमारे स्पेस आ जाता है, मतलब जगह आ जाती है, ताकत आ जाती है और मैटर आ जाता है। अब इस जो स्पेस में वहाँ पर गैलेक्सीज़ हैं, सोलर सिस्टम्स हैं और भी बहुत सारी स्पेस की चीज़ें हैं जो एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं। और इन स्पेस की चीज़ों में हमारे आ जाते हैं स्टार्स, आ जाते हैं प्लैनेट्स, आ जाते हैं एस्ट्रॉइड्स जो पत्थर होते हैं, चाँद वगैरह आ जाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। Galaxies. A galaxy consists of a number of solar systems. It can also be referred to as a collection of a large number of stars. Our sun is one of the stars in the galaxy. The stars are very far from each other. अब हमारी जो गैलेक्सी है वो सोलर सिस्टम्स के नंबर्स पर बनी हुई है। अब इसको जो है हम एक बड़ा नंबर, स्टार्स का बड़ा नंबर भी कह सकते हैं। हमारा जो सन है वो एक स्टार है, हमारी गैलेक्सी का एक स्टार है। और जो ये स्टार्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। The distance between the stars is so vast that it is measured in light years. A light year is a distance which is covered by light in a year. Light travels at the speed of 300,000 kilometers per second. अब हमारे जो मतलब इस पे डिस्टेंस है इन तारों के बीच में वो हमारा लाइट ईयर्स में आ जाता है। अब लाइट ईयर जो है हमारा वो लाइट के स्पीड पर हमारा कवर मतलब उसके हिसाब से होता है। जो लाइट हमारी होती है वो 300,000 किलोमीटर एक सेकंड में ट्रेवल करती है। तो इन स्टार्स के बीच में जो हमारा फासला होता है वो इतना ही होता है। Number 2, the solar system. There are many solar systems in the galaxy. Our solar system consists of the sun, 8 planets and many asteroids, meteors and a comet. Our solar system is located in galaxy known as the Milky Way. All the planets and space bodies of our solar system revolves around the sun. अब हमारा जो सोलर सिस्टम है, हमारी गैलेक्सी में बहुत सारे सोलर सिस्टम हैं। जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें एक सूरज, 8 प्लैनेट्स और बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स, मेटेयर्स और कॉमेट होते हैं। अब हमारा जो सोलर सिस्टम है वो एक गैलेक्सी में है जिसका नाम मिल्की वे है। और जो दूसरे हमारे प्लैनेट्स हैं या दूसरी स्पेस बॉडीज़ हैं वो हमारे सिस्टम के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं और सूरज के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं। Stars. There are millions of stars in the universe, but only about a few thousand are visible from the earth. Stars are giant balls of hot gases, mainly hydrogen and helium. Our sun is the closest star to the earth. The sun is the biggest source of heat and light for us. It is 149.6 million kilometers from the earth. The sun is not the biggest star of our galaxy, but there are still others that are very far away from us. The biggest star is Sirius. अब हमारा जो स्टार्स हैं हमारे गैलेक्सी में पता नहीं कितने सारे, हमारे यूनिवर्स में पता नहीं कितने हज़ार जो हैं वो हैं सितारे, पर हमारे अर्थ से सिर्फ कुछ हज़ार ही नज़र आते हैं। स्टार्स जो हैं वो बहुत बड़े बॉल्स होते हैं जिनमें हाइड्रोजन और हीलियम होती है। हमारा जो सन है वो सबसे मतलब पास वाला हमारे अर्थ से स्टार है। हमारा जो सन है
मतलब सूरज है वो हमारे रोशनी और गर्मी का मेन सोर्स है, और ये हमारे मतलब ज़मीन से 149.6 किलोमीटर्स दूर, मिलियन किलोमीटर्स दूर है। अब जो हमारा सूरज है, हमें तो ये लगता है कि सबसे बड़ा स्टार यही है, पर हमारे पूरे यूनिवर्स में और भी बहुत सारे हैं, पर हमारा जो सबसे बड़ा स्टार है वो है साइरस। Page number 4, the planets and their moons. There are 8 planets and a number of moons in our solar system. The moons orbit around the planets and the planets orbit around the sun. Every planet has its own orbit at some distance from the sun. Different planets have different number of moons, some have none. The chart below shows the necessary information about the planets and the moons of our solar system. अब हमारे जो सोलर सिस्टम है उसमें 8 प्लैनेट्स हैं, और उनके 8 प्लैनेट्स के कुछ नंबर्स हैं जिनकी तादाद में हमारे उनके मून्स हैं। अब जो चांद होते हैं उनके वो प्लैनेट्स के इर्द गिर्द घूमते हैं, और जो प्लैनेट होते हैं वो सूरज के इर्द गिर्द घूमते हैं। अब हर प्लैनेट का अलग अलग ऑर्बिट होता है, हम मतलब कुछ दूरी पर सन से, और जो हमारे हमारे प्लैनेट्स हैं उनके मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के और मुख्तलिफ़ नंबर्स होते हैं हमारे उनके चांदों के। किसी किसी के पास तो एक भी नहीं होता। अब जो नीचे ये चार्ट दिया गया है, इसमें हमारे सोलर सिस्टम के चांद और प्लैनेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। नेम ऑफ प्लैनेट्स मरकरी, डायमीटर्स ऑफ प्लैनेट्स इन किलोमीटर। अब इसका जो पूरा डायमीटर है वो किलोमीटर्स में है, वो है 4880 किलोमीटर्स। डिस्टेंस फ्रॉम द सन इन मिलियन किलोमीटर्स। अब वो कितनी दूर है हमारे सन से? 58 मिलियन किलोमीटर्स। इसके पास एक भी चांद नहीं है। और ड्यूरेशन ऑफ ऑर्बिट अराउंड द सन, ये कितने दिनों में एक हमारे जो है सन के इर्द गिर्द कितना चक्कर लगाता है? 88 डेज़ में वो अपना एक चक्कर ख़त्म करता है। ड्यूरेशन ऑफ रोटेशन अराउंड एक्सिस, अब फिर उन दिनों में रोटेट कितनी बार होता है? 59 डेज़ में वो होता है। अब ये इसी तरह ये सारा आपका चार्ट दिया गया है, ये आप देख लीजिएगा अपने बुक में। नंबर 4, comets. Comets are the most beautiful objects in the sky. They consist of a head made of dust and ice and a tail of shiny bright particles of gas. The tail always point away from the sun like planets. They also go around the sun, but their orbit are very different and much larger. Usually comets can take between anywhere 3.5 and 10,000 years to complete their orbit. अब जो हमारे कॉमेट्स हैं वो बहुत ही खूबसूरत होते हैं। अब जो उनका एक सर होता है जो मिट्टी और बर्फ़ से बना हुआ होता है, और उनकी दुम होती है जो हमारे चमकदार गैस के पार्टिकल से बनी हुई होती है। उनकी जो टेल होती है वो हमेशा सन से दूर पॉइंट करती है, और जैसे दूसरे प्लैनेट्स ऑर्बिट करते हैं हमारे सन के इर्द गिर्द, ये भी करती हैं, पर इनका जो ऑर्बिट होता है वो बहुत ही डिफरेंट होता है और बहुत ही बड़ा होता है। इन्हें 10,000 साल भी लग सकते हैं अपना ऑर्बिट कंप्लीट करने में। Meteors. Sometimes shooting star can be seen as the streaks or flashes of light in the sky. They are not really stars but meteors passing through the Earth's atmosphere. Meteors are pieces of rock debris which while passing through our atmosphere becomes white hot and burn away. A few large meteors have actually landed on the Earth as meteorites. A gigantic meteorite crashed into the Earth in what is now Arizona, USA. It left a huge crater
1200 meters across and 180 meters deep. अब हमारे जो मीटियोर्स होते हैं वो एक रॉक होते हैं, कभी कभी हमें शूटिंग स्टार्स नज़र आते हैं, हम जैसे आसमान में एक हल्की सी रोशनी आकर गायब हो जाती है, वो असल में स्टार्स नहीं होते पर हमारे मीटियोर्स होते हैं जो हमारे अर्थ के आसपास होकर गुजर जाते हैं। वो बहुत ही मतलब जले हुए होते हैं, गर्म होते हैं और जलकर चले जाते हैं। बहुत सारे जो मीटियोर्स हैं वो हमारे ज़मीन पर आकर गिरे भी हैं मीटियोराइट के तरह, और एक तो एरिज़ोना यूएसए में भी है जो अभी तक अपने निशान छोड़ गया है, जो 1200 किलोमीटर बड़ा है और 180 मीटर्स गहरा है। Eclipse. The moon orbits around the earth while the earth orbits around the sun. Sometimes during the rotation the moon and the earth form a line with the sun, which this happens when eclipse occurs. There are two types of eclipse: lunar eclipse and solar eclipse. अब जो हमारा चांद है वो हमारे अर्थ के इर्द गिर्द घूमता है और हमारी जो अर्थ होती है वो सन के इर्द गिर्द घूमती है। अब कभी कभी इनके मतलब घूमने के दौरान चांद और हमारी अर्थ हैं वो सन के साथ एक लाइन बना लेते हैं, तो फिर वहाँ पर ग्रहण होती है। ग्रहणों के दो टाइप्स होते हैं, लूनर इक्लिप्स और सोलर इक्लिप्स। लूनर वो होती हैं जो चांद ग्रहण होती है और सोलर इक्लिप्स हमारी सूरज ग्रहण होती है। The lunar eclipse. And a lunar eclipse happens when the earth moves between the sun and the moon. The earth blocks the sunlight from reaching the moon, hence the shadow of the earth can be seen on the moon. This is called a lunar eclipse. अब lunar eclipse तब होती हैं जब हमारी अर्थ जो होती है वो मून और चांद और सूरज के बीच में आ जाती है, तो हमारा जो धूप की जो हमारी अर्थ होती है वो सनलाइट को ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से चांद पर अर्थ का शेडो नज़र आता है और हमारा जो मतलब इसे हम लूनर इक्लिप्स कहते हैं, मतलब चांद ग्रहण। The solar eclipse. In a solar eclipse, the moon moves between the sun and the earth. When it happens, the path of sunlight gets blocked. This is called a solar eclipse. The sky slowly gets dark when the moon and the sun are in perfect line and the sun's light gets totally blocked. It is called total eclipse. Such event is very rare. Most people experience this event once in the lifetime. अब हमारी जो सूरज ग्रहण होती है वो मतलब जब हमारा सूरज और अर्थ के बीच में चांद आ जाता है तो हमारी सूरज ग्रहण होती है। इस वजह से होता है क्योंकि हमारा जो मतलब चांद है वो अर्थ और सूरज के बीच में आ जाता है, और जब मतलब सूरज और चांद एक ही लाइन में होते हैं तो हमारे पूरे आसमान पर बिल्कुल ब्लैक हो जाता है। तो कुछ लोग ऐसे मतलब इस इवेंट को बहुत ही कम दिखता है, ये कोई लोग इसे सिर्फ एक बार अपने लाइफ में देख पाते हैं। That's all about our reading, so let's solve its exercises. So now question number 1 है, explain the difference between a solar and a lunar eclipse. In a solar eclipse, the moon moves between the sun and the earth. When that happens, sunlight gets blocked and does not reach the earth. यहाँ तक. In a lunar eclipse, the earth moves between the sun and the moon. When that happens, the earth casts its shadow on the moon. Write a short note on comet. Comets are spectacular space bodies. They have a head and a tail. The head consists of dust and ice, whereas the tail consists of shiny and bright gases. Comets travel around the sun in orbits different from those of planets. यहाँ तक, और हमारा थर्ड जो है वो पूरा आएगा.
हमारे क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व हो गए हैं, तो अब हम फिल इन द ब्लैंक सॉल्व करेंगे। तो नंबर 1, देयर आर डैश प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स। Jupiter has dash moons, 53 moons. Meteoroids are pieces of rock debris. Stars are giant balls of gas, mainly hydrogen and helium. The distance of the Earth from the Sun is 149.6 million kilometers. Tick the correct statement and cross the false statement. All planets have moons orbiting around them. False, क्योंकि हमारे कुछ planets में moons नहीं होते. Our solar system is called the Milky Way. True. Meteors strike the Earth's surface every year. False. A galaxy consists of many universes. False. Light travels at the speed of 3000 kilometers per second. False. अब है हमारे सी फिल इन द मिसिंग इन्फॉर्मेशन। ये आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। आपके पिछले पेज पर ये टेबल दी गई है। सॉल्व इट इन योर ओन्स, and that's all about this chapter. We will continue our lectures in our next video. Thank you for watching.